Okay, so good morning to all of you. Good morning, sir. Yes. Okay, we have completed the last time free vibration. Okay, now give me some answer of some of question. What is the equation for force in the translation? Force में translation में pure translation motion में force का equation क्या है? Force क्या होता है pure translation में भी यार? Mass into acceleration. इतनी यार कितने लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ, कितने न्यूमेरिकल सोल्व किए, फिर भी फोर्स क्या होता है या नहीं पता? प्योर ट्रांसलेशन में फोर्स क्या होता है? mx double dot यस mx डबल डॉट क्या है यार? मास इनटू एक्सेलरेशन. એ પેલા સર બોયલું કોક માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન એમ બોયલું પેલા આ ક્રુક્સ બોલ્યો એક બસ, બાકી બધા શું કરે છે? What are you doing? सर मास इंटू एक्सेलरेशन होगा वो तो अभी पता चला ना. नहीं सर, वो क्रूक्स ने बोल दिया, इसके लिए मैं बोला नहीं, बार बार बिगड़े. अगर सेम चीज रही तो इसके बाद जो वाइब्रेशन आने वाला है आपको कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं करने वाला. What is the equation for torque in a pure rotation? What is the equation for net torque in a pure rotation? Force into distance. Force into distance, that is energy, not a force. Torque. What is equivalent to mx double dot? mx double dot जैसे pure translation में है, so what is the equivalent of mx double dot in a pure rotation? Theta double dot. I theta double dot. I theta double dot. I theta double dot. Yes. What is I? Moment of inertia. Which moment of Inertia. inertia? Mass moment of inertia. Mass moment of inertia. Mass moment of inertia. Yes, right. Now, give me the equation. What is the damping force? What is the damping force? F. जिसमें 3 सिस्टम पैरामीटर थे, उसमें मैंने बताया था कि डैम्पिंग नाम की चीज आई थी. What is the damping force F? X dot. Cx dot. Yes, F is equal to Cx dot. Okay, F is equal to Cx dot. cx dot Cx dot. That is damping force. Now, what is the kinetic energy in a pure translation? kinetic energy in pure translation Half m x dot square. 1/2 m v square होता है, 1/2 mx dot square. Right? What is the kinetic energy in pure rotation? I I theta dot square. 1/2 I theta dot square. I theta dot square. Dot. What is the spring energy? half Kx kx square Not kx square, 1/2 kx square. 1/2 kx square. Sorry. 1/2 kx square. Yes. Now, what is the maximum amplitude? What is the equation of amplitude? We have solved the derivation, differential equation. X sine omega t plus phi. Yes, x is equal to capital X sin omega n t plus phi. What is the velocity x dot? x omega n X cos omega n cos omega n T plus plus phi. t plus phi What is the acceleration x double dot? Minus omega n square. minus omega n square phi. sin omega n t plus phi. Minus x omega n square sin omega n t plus phi. Right? उसमें जो पहले के कांस्टेंट है वो मैक्सिमम वैल्यूज है. ओके. रिस्टोरेशन का काम कौन करता है? रिस्टोरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? Spring. ओके. Equal to F. ओके, स्प्रिंग यूज करते हैं या तो फिर डैम्पर यूज करते हैं. ओके. इफ डैम्पर इज नॉट यूज्ड देन दिस वाइब्रेशन इज नोन एज अ फ्री वाइब्रेशन. ओके, फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं इसको जब डैम्पर नहीं यूज करते. तो जब हम डैम्पर यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं डैम्प वाइब्रेशन, डैम्प फ्री वाइब्रेशन. राइट? नाउ we have a 3 methods to solve any numerical of free vibration. What is the first method? Newton न्यूटन्स मेथड, Or डीएलएम्बर्ट मेथड, Okay, उसमें हम क्या करते हैं? Energy method. ऑल इज इक्वल Summation of all the forces that is equal to 0.
Clear? Zero. हाँ Zero. What is the Yes, second sir. method? D'Alembert. Energy. Second Energy method, method. total energy method. उसमें हम क्या करते हैं? Energy method. Energy method. सर d by dt करिए टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस Energy constant है. Dynamic is Summation of all energy that will be constant. So if you differentiate that summation all the energies, that will be zero. Okay. So your kinetic energy plus potential energy or kinetic energy plus spring energy is a summation, and if you put differentiation of summation, that will be always zero. यस सर Now, third thing. Rayleigh. Raleigh's method. Rayleigh. Raleigh's method में क्या कहते हैं? Maximum Rayleigh energy that method. will are be equal to converted into kinetic another energy point. equals to potential energy. Yeah. And if you have put the Total maximum energy. value, in Raleigh's method, you should know the three equation: x is equal to x sin omega nt plus phi, x dot is equal to x omega n cos omega nt Yes, plus sir. phi, x double dot is equal to minus x omega n square sin omega nt plus phi. So if you don't know these three equations, you cannot solve any numerical by Rayleigh method. That is okay. yes, sir. Yes, sir. So and after that we have solved a lots of numerical. Now give me what is the equation for natural frequency for spring mass system? Only spring mass system. What is the equation for frequency? Omega n. Root k by n. Yes. M. That equation you have to be remembered. For spring mass system, your energy equation, your natural frequency omega n is equal to under root k by n, and omega n is equal to 2 pi m. Okay, and 2 pi time period t is equal to 1 upon m. And we have 1 upon. done one practical. Okay, Yes, sir. string वाला दोरी और string का जो example किया है, that is. Okay? We have find the Yes, sir. oscillation theoretically as well as practically, and both are the matching. Results are matching. For compound pendulum का हम use क्यों करते हैं? Compound pendulum का हमने जो experiment किया उसका main intention क्या था? Center of Sir, gravity. Radius of gyration. Center of Radius gravity of gyration find करने के लिए. Radius of gyration हम क्यों find करते हैं? नहीं, moment of inertia के लिए. Yes, mass moment of inertia calculate करवा माटे. So if you have any irregular shaped body and if you want to calculate the mass moment of inertia, just do nothing. Make a oscillation. Note down the time period of that particular oscillation. Put into the standard equation. You will get direct radius of gyration. And if you multiply mk square, that will be your mass moment of inertia. So that will be a very much easy as compared to the theoretical equation. That's why we have a practical of compound pendulum. Now. That is the story of free vibration. Okay, and we have already done a practical of free vibration spring mass system में. अब जो बात आ रहा है वो डैम्प वाइब्रेशन है, मतलब कि इसमें हम डैम्पर यूज कर रहे हैं. डैम्पर बस एक आगे लगा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो जो भी चीज फ्री वाइब्रेशन में की है वही मेथड्स हम डैम्प वाइब्रेशन में करेंगे, लेकिन थोड़े नए टर्म इंट्रोड्यूस होते जाएंगे. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन रखना, वरना वाइब्रेशन पूरा चला जाएगा. ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आई एम शेयरिंग वन स्क्रीन. Give me answer that screen is visible or not. Yes, sir, it's visible totally. Okay, Kashyap bro. Okay, that is the third thing, that is single degree of freedom damp free vibration. देखो पहले के चीज में क्या था हमारे यहाँ पे, सिर्फ हमारे पास यही था मास. ओके, मास और स्प्रिंग. अब मैंने यहाँ पे एक डैम्पर लगाया है. okay? तो देखो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन दूंगा तो मुझे पता है मेरी इनर्शिया इसके ऑपोजिट काम करेंगे, स्प्रिंग फोर्स भी ऑपोजिट काम Yes, करेगा, sir. और डैम्पर फोर्स ऑपोजिट काम करेगा. तो पहले के केस में मेरा इक्वेशन क्या था जब डैम्पर नहीं था? mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0. दैट इक्वेशन दैट आई हैव. ओके, नाउ डैम्प फोर्स वी हैव टू एडिशन. So mx double dot plus cx dot plus kx is equal to 0. That will be your equation for single degree of freedom damp free vibration. Clear? अगर आपको कोई पूछे कि वाइब्रेशन का इक्वेशन क्या है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम डैम्प फ्री वाइब्रेशन में, that will be this mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx is equal to 0. इसमें से डैम्पर निकालोगे तो फ्री वाइब्रेशन ओनली हो जाएगा. अब मुझे क्या करना है, इनका सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के लिए आगे डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं क्या करूंगा, x डबल डॉट m को नीचे डिवाइड, Can equation, sir? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम डैम्प फ्री वाइब्रेशन. ओके, नाउ अब मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, मुझे इसमें से x चाहिए. ठीक है, इस सारी चीजों में से मुझे x चाहिए. तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करना है, x डबल डॉट प्लस इस m को मैं डिवाइड कर दूं c by m plus k by m x is equal to 0. So I can say x double dot is the second derivative. So I can say d square of x plus c by m. x dot is the first derivative, d of x plus k by m x is equal to 0. Okay, फिर d is equal to d by dt. ऐसी न्यूमेरिकल मेथड आ गई है ना आपको यार पढ़ने में, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है मैथ्स में, मैथमेटिक्स. Yes, I think sir.
फोर्थ सेमेस्टर। Yes, sir. ओके, तो जब भी किसी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसके दो सॉल्यूशन होते हैं, एक सीएफ होता है, एक हाँ। पीआई होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएफ? पर्टिकुलर इंटीग्रल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएफ? कॉमन कॉम्प्लीमेंट्री No. फंक्शन। Supplementary function. यस, व्हाट इज पीआई? particular Particular integral. integral. Particular integrator. Particular integrator. And if your equation is homogeneous, it means your right hand side is 0, so that will be pi will be 0. So you have only Zero. cm. Now to find out the cm, we can remove this x, we can say d square plus c by m d plus k by m is equal to 0. Now Zero. this is the equation of second order equation. Okay, x square plus this, and if you want to find out the root, we have a equation that d is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. ये equation को पता है ना सबको? Yes sir. ओके, हाँ सर. तो देखो b क्या है? Yes, sir. माइनस सी बाई एम प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब सी बाई एम होल स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 1 ए सी के बाय तो 4 के बाय एम अपॉन 2 ए 1. 4k by m. यस, Yes, sir. नाउ इन 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दो, इस 2 अंडर रूट में जाएगा तो 4 हो जाएगा. ठीक है, तो आई कैन से माइनस सी बाई C by 2m. अंडर रूट सी बाई यहाँ पे Under स्क्वायर है root तो 2 का C 2 by की 2m square. होल स्क्वायर प्लस 4 4 दैट Yes. विल बी कैंसिल आउट के बाय एम. यहाँ तक किसी को डाउट है? Yes, sir. No sir. No, sir. तो फटाफट इतना फटाफट अपने आप से करने की ट्राई करो. चलो ड्रॉ कर दो. राइट डाउन द हेडिंग सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम डैम्प फ्री वाइब्रेशन. સર આ પીઆઈ શું કામ ના ના ખબર પડી.
यहाँ तक सबको पहुंच जाओ फिर मुझे बोलना। पहुंच गए? हाँ सर। ओके देखो, अब यहाँ पे इसको मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए ये टर्म जो है c/2m होल स्क्वायर माइनस k में बार बार आएगा, ठीक है। तो मैं इसको कुछ नोटेशन देने के लिए मैं एक चीज डिफाइन करता हूँ, दैट इज डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डैम्प वाइब्रेशन यूज किया। तो मैं क्या बोलता हूँ कि a डिवाइड बाई a, इन चीज को मैं बोलता हूँ डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। तो इफ आई टेक जीटा, इसको बोलते हैं जीटा, ठीक है। जीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ c/2m होल स्क्वायर बाई k/m। अगर मैं इसको डैम्पिंग रेशियो बोलता हूँ, that is known as c/cc. C is a damping coefficient, cc is a critical damping coefficient, okay। c/cc क्योंकि ये डैम्पिंग रेशियो है, मतलब कि क्रिटिकल डैम्पिंग कितना होना चाहिए और आपका डैम्पिंग कितना है, उस रेशियो को बोलते हैं हम c/cc, दैट इज डैम्पिंग अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, c/2m होल स्क्वायर अपॉन k/m। अब इसको मैं सिंपलीफाई करूं, ठीक है, तो m एक m ओमेगा, मुझे पता है k/m इज इक्वल टू माय ओमेगा n स्क्वायर, ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट k/m होता है स्प्रिंग मास के लिए, तो k/m इज इक्वल टू ओमेगा n स्क्वायर and c/2m होल स्क्वायर सेम एज दिस, ओके। सो आई कैन से zeta इज इक्वल टू c स्क्वायर और अंडर रूट निकल जाएगा c अपॉन 2m ओमेगा n, और आई कैन से c अपॉन ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट k/m पुट करूंगा तो मुझे आएगा c अपॉन 2 रूट km। ये इक्वेशन आपको याद रखने हैं। व्हाट સર આ इज ઝીટા ની બદલે કઈ બીજું નોટેશન નહીં અપાય? ના એ સ્ટાન્ડર્ડ છે ભાઈ, જેટલી બી બુક્સ જોશો એમાં zeta જ આપેલું છે નોટેશન, ઓકે। તો આઈ થિંક યુ શુડ ફોલો ધીસ પ્રોસિજર કે zeta જ આપો, સર ધેટ ડ્રો વિલ બી કરો, બેટર। ડ્રો કરવું કશું લખો નથી, તો છકડો આમ કરીને સાપ દોર નાખવાનો, કામ પૂરું। અરે તમે સમજી જજો તો પછી હા અમે જે બી કર્યું। વેઇટ વેઇટ વેઇટ, ઓકે, આમ કરીને આમ કરી નાખવાનું, ક્લિયર? હા સર। ओके देखो, अब यहाँ पे मैंने जीटा, तो ये जीटा c अपॉन 2m ओमेगा n अथवा तो c अपॉन 2 रूट km, तो ये जीटा की वैल्यू कब होगी? સર यस, સર C ને CC એટલે હું કીધું સર? c છે ડેમ્પિંग કોએફિशिएंट, cc क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, क्रिटिकल मतलब कि मैक्सिमम स्टैंडर्ड क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, c है आपका कितना है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्या है, दैट इज डैम्पिंग रेशियो, ओके। तो आपकी जीटा की वैल्यू 0 रहेगी तो आपका अनडैम्प वाइब्रेशन, मतलब कि उसमें डैम्पिंग है ही नहीं, ठीक है। जीटा इज ग्रेटर देन 0 तो आपके पास 3 का है। अगर आपका जीटा लेस देन 1 है तो आप बोल सकते हैं अंडर डैम्पिंग। लेस देन 1 है मतलब क्या होगा, सी इज लेस देन सीसी, सी इज लेस देन सीसी है मतलब कि क्रिटिकल जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है उससे आपका डैम्पिंग कम है मतलब उसको बोलते हैं अंडर डैम्प। जीटा 1 है तो दोनों सी इज इक्वल टू सीसी होता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, ओके। और जीटा ग्रेटर देन 1 है मतलब कि क्रिटिकल इतना होना चाहिए, जीटा ग्रेटर देन 1 मतलब सी इज ग्रेटर देन सीसी, तो आपका डैम्पिंग इससे भी ज्यादा है तो इसको हम बोलते हैं ओवर डैम्पिंग, राइट। So zeta is equal to C upon C, the actual damping coefficient divided by critical damping coefficient। अगर आपका zeta 1 है तो I can say CC is equal to 2m omega n is equal to 2 under root km। So that will be some simplification of that particular equation। So that is a separate order। If the question is asked, explain that what is the damping ratio and damping factor and what are the possible values, so you have to write this one page, right? So write down from here damping ratio or damping factor. We have given a significance that zeta is equal to under root c/2m whole square upon k/m। Write down this damping ratio or damping factor। આ ઓલું K/M આવે ને, क्या? આ છેલ્લી જે મેઇન ઇક્વેશન છે zeta equal to c/2m omega n, પછી हाँ, એની પછીથી तो आई जो ओमेगा K/m આવે ને, नहीं, ओमेगा n is equal to under root k/m पुट करो तो अंडर रूट છે તો આ m છે બે અંડર રૂટ કહેવાય, રાઈટ। તો એક એક અંડર રૂટ કેન્સલ થઈ જાય, એક રૂટ m વધે એ રૂટ k વધે એટલે અંડર રૂટ km થઈ ગયું। ओमेगा n is equal to under root k/m પુટ કરો એટલે તમને ડાયરેક્ટ એ ઇક્વેશન હા સમજી ગયો।
सर थोड़ું નીચે કરી દો ને. ओके, जीटा की 3 वैल्यू पॉसिबल है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। 0 है तो आपका अनडैम्प्ड वाइब्रेशन रहेगा। हो गया ये? No, sir. हुआ किरण? Yes, sir. Okay. देखो, तो अब हमें क्या है कि इस इक्वेशन में सारी चीजें रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखो, एक तो c/2m है और k/m है, तो मुझे इसका रखना है जो भी सिग्निफिकेंस है वो जीटा के फॉर्म में। तो पहली बात कि c/2m क्या होता है, तो देखो यहाँ पे c/2m बराबर क्या होगा, तो कि जीटा इंटू ओमेगा एन, ये ओमेगा एन यहाँ पे चले जाएगा, तो c/2m दैट विल बी जीटा इंटू ओमेगा एन, एंड k/m तो मुझे पता ही है, k/m इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर, राइट। ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट k/m होता है, तो k/m इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे c/2m बराबर जीटा ओमेगा एन रखो, k/m इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर रखो, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो अंडर रूट के बाहर आएगा, सिर्फ ओमेगा एन बचेगा, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये आपका रहेगा d1, तो ये आपके जो बनेंगे 2 रूट मिले, ठीक है। अब देखो, मान लो कि आपकी सिस्टम अंडर डैम्प है, अंडर डैम्प है मतलब क्या है, आपका जीटा लेस देन 1 होगा अंडर डैम्प है, ठीक है। तो जीटा लेस देन 1 है, तो वो क्या मैं बोलूंगा, माइनस जीटा ओमेगा प्लस और माइनस ओमेगा, इसमें से -1 कॉमन लेता हूँ मैं, -1 कॉमन लेता हूँ, 1 माइनस जीटा स्क्वायर होगा, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है ना, आई की वैल्यू क्या रहती है, अंडर रूट -1 ही रहती है, ठीक है। तो आई कैन से माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस आई ओमेगा एन, ठीक है। तो इसको मैं, ये जो पीछे वाला टर्म है, इस पीछे वाला, उसको मैं बोलता हूँ डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, ठीक है। जब भी डैम्प नहीं है तो सिर्फ ओमेगा एन आता है, लेकिन जब भी डैम्प होती है तो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी आती है, दैट इज डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो मेरा फाइनल इक्वेशन बनेगा d12 इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा प्लस और माइनस आई ओमेगा डी, ठीक है। तो अगर आपके रूट ए प्लस और माइनस आई बी के फॉर्म में है, ए प्लस और माइनस आई बी के फॉर्म में है, तो आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो ये सॉल्यूशन क्या रहेगा, ई रेस टू माइनस ए टी ए कोस बी टी प्लस बी साइन बी टी, e raised to minus 80 a cos bt plus b sin bt where a and b are the constant, ये आपका इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू e raised to minus 80, तो a क्या है माइनस जीटा ओमेगा है t, a cos bt b क्या है तो कि ओमेगा d, b sin bt b क्या है तो कि ओमेगा d, तो आपका ये सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू मुझे लेनी है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे वाइब्रेशन होगा वो साइन या कोस वे में होगा, ठीक है। तो अगेन आई एम सेइंग a इज इक्वल टू मान लो x sin 5 है, b इज इक्वल टू अगेन x sin 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा टी, देखो x sin 5 cos ओमेगा टी, cos 5 sin ओमेगा टी, तो sin cos sin इज इक्वल टू क्या होता है, sin ओमेगा dt प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे 5 है, तो x का x कांस्टेंट sin ओमेगा dt प्लस 5,
तो x ये आगे रहेगा, x इज इक्वल टू x e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा nt sin ओमेगा dt प्लस 5। ये वही इक्वेशन है जो आपने नेचुरल वाइब्रेशन में, फ्री वाइब्रेशन में डिराइव किया था। फ्री वाइब्रेशन में मेरा एम्पलीट्यूड क्या आ रहा था, x इज इक्वल टू x sin ओमेगा nt प्लस 5। यहाँ पे डैम्प है तो मेरा आएगा x इज इक्वल टू x e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा nt, ये टर्म ऐड होगा, sin ओमेगा d हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, पिछले में एम्पलीट्यूड रहेगा ओनली x, यहाँ पे एम्पलीट्यूड रहेगा x e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी। तो देखो अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँ तो साइन वेव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड रहता है e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी, मतलब कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आगे माइनस है, ठीक है, आगे माइनस है। तो ये बीच में डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो आपका एम्पलीट्यूड जितना टाइम चला जाएगा वैसे डिक्रीज हो रहा है। तो देखो मान ले पहले मेरा एम्पलीट्यूड x0 है, देन दूसरे में एम्पलीट्यूड मेरा थोड़ा डिक्रीज होगा, देन तीसरे में मेरा थोड़ा एम्पलीट्यूड और डिक्रीज होगा और फाइनली वो जीरो होता जाएगा। मतलब वाइब्रेशन इसी टाइप का रहता है आपका जनरली। क्या होता है, पहले बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आता है, फिर धीरे धीरे वाइब्रेशन की इंटेंसिटी कम होती है, फिर वाइब्रेशन जीरो हो जाता है। ओके, तो दैट इज द थिंग। इन दोनों के बीच का टाइम पीरियड उसको हम टीडी बोलते हैं। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या रहता है, ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ से लिख लो, यहाँ से हम स्टार्ट बाकी थे D12 से। सर थोड़ું કે ઉપર કરો। ऊपर का नहीं, સર નીચે કરજો ને। एक मिनट सर, ऊपर कौन सा थोड़ा ऊपर अंडर डैम के ऊपर। हाँ सर, इतना आ गया। સર આ અંડર ડેમ્પ ની નીચેની બે લાઈન છે, સમજાવો ને થોડીક પાછી। કઈ અંડર ડેમ ની? ઓકે, આ અંડર ડેમ્પ લખેલું છે ને એની નીચે જો આ બે ઇક્વેશન છે ને, અંડર I ડેમ વાળું વાઇબ્રેશન એટલે શું હોય, જીટા લેસ ધેન 1 હોય, રાઈટ। તો જીટા લેસ ધેન 1 હા હોય,
જો અહીં જીટા લેસ ધેન 1 પુટ કરું રાઈટ, તો એનો સ્ક્વેર કરું તો એનાથી બી નાનો થાય, એમાંથી માઇનસ કરું તો આખી વેલ્યુ માઇનસ માં આવે. તો અંડરરૂટમાં માઇનસ ક્યારેય હા. પોસિબલ છે નહીં. તો હું શું કરું, આમાંથી નહીં, માઇનસ કોમન કાઢી લઉં, 1 માઇનસ જીટા સ્ક્વેર કરી નાખો. હવે આપણને ખબર છે કે અંડરરૂટ -1 બરાબર i થાય, ઇઝ ઇક્વલ ટુ i. अंडररूट i की वैल्यू होती है अंडररूट ऑफ -1, राइट, एंड 1 माइनस हाँ। जीटा स्क्वायर. तो मेरे पास एक इक्वेशन आया, लेकिन ये क्या था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा रहता है, लेकिन ये जो पीछे वाला पोर्शन है वो उसको बोलते हैं डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी. क्या कहते हैं, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडररूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ठीक है, तो इसके जगह में ओमेगा डी पुट किया. ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन है a प्लस और माइनस आई बी ऐसा रूट है. तो अगर आपके पास a प्लस और माइनस आई बी रूट है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, e रेज टू माइनस at a cos bt प्लस b sin bt, ऐसा रूट होता है इसका. ठीक है, सेकंड है a रेज टू माइनस a मतलब जीटा ओमेगा n, a cos bt, b इट मींस ओमेगा d, प्लस b sin bt, bt इज इक्वल टू ओमेगा d. अब a और b क्या है, वो एम्पलीट्यूड कैसा है, तो कि साइन और कॉस हुए में, तो मैं पुट सकता हूँ a इज इक्वल टू मान लो x sin 5 है, b इज इक्वल टू x cos 5 है. तो साइन कोस, कोस साइन, तो क्या होता है साइन ओमेगा dt प्लस 5, और एम्पलीट्यूड x रहता है, a x मैंने आगे ले लिया. सेम ही इक्वेशन है जो फ्री वाइब्रेशन में क्या था, x इज इक्वल टू x sin ओमेगा nt प्लस 5, यहाँ पे x sin ओमेगा dt प्लस 5. ओके, वेट, हेलो, ओके, ठीक है, नीचे सिर्फ एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना. आज हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है, अपना लेक्चर. देन वी नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टू फॉरवर्ड. ड्रॉ हो गया है? नो सर, 1 मिनट सर बस. सर 1 मिनट सर. सर ये जितना लिखा अपलोड करना है अभी? नहीं, आज रहने दो. ओके सर. ओके, हाँ, 1 मिनट सर बस, 1 मिनट, वो काम से 1 मिनट. give me your presence. Who is absent? बाहर. ओके, भावेश. ठीक है, ओके, यू कैन लीव नाउ. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.